આજ રોજ જામનગર ખાતે એમએસએમઈનું માર્ગદર્શન અને જામનગર એક્સપો છે, જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશન અને કેએનડી કોમ્બિનેશન અમદાવાદ જોઈન્ટ 2025માં 13, 14, 15, 16 ફેબ્રુઆરી ન્યૂ જામનગરની સામે એક ભવ્ય ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો કરવા જઈ રહ્યું છે અને આ એક્સપોની અંદર જામનગરના 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ બ્રાસપાટને હાઇલાઇટ કરતો પહેલો એક્સપો છે. એટલે અંદાજે 250 જેવા સ્ટોલ હશે અને 30 દેશોના પ્રતિનિધિઓ આ સ્ટોલની મુલાકાત લેશે એવી અમને પૂરી ખાતરી છે. અને સરકારની જે સંસ્થાઓમાંથી સ્ટોલને જે બેનિફિટ 100% મળશે, અમે સરકારના એમએસએમઈ ડિપાર્ટમેન્ટ અને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ રજૂઆત કરી અને સ્ટોલની અંદર અને જે આવવાવાળા આપણા બાયરો છે એને પણ જે કંઈ પણ જે સરકાર ફેસિલિટી આપે છે એના માટેના અમારા પૂરા પ્રયત્નો ચાલુ છે. અને અમારી પૂરી ટીમ, મારા સર્વ હોદ્દેદારો અને ચેરમેન રાજુભાઈ, વાઇસ ચેરમેન અશોકભાઈ બધા સાથે મળી અને હજી આપણી પાસે લગભગ 8 મહિના જેવો ટાઈમ છે. તો આની એક એવો પ્રચાર કરી અને 250થી પણ વધારે સ્ટોલ થાય અને આ ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં પણ આનું માર્કેટિંગ જબરું થશે અને વચ્ચેથી જે ટ્રેડર્સ છે એ નીકળી જશે અને ડાયરેક્ટ બાયર સાથે જામનગરની ઇન્ડસ્ટ્રીને એક તક મળશે. 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં ખાલી બ્રાસપાટને લગતું કહી શકાય એવું આ પહેલું જ એક્ઝિબિશન છે. આજનો આ અમારો કાર્યક્રમ હતો કે લોન્ચિંગ, કે ભાઈ આજથી અમે આને લોન્ચિંગ કરીએ છીએ અને બુકિંગ અને એમએસએમઈના જે પણ બેનિફિટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મળે એના માટેનો સેમિનાર બંને અમે સાથે રાખેલું હતું. કેટલા દેશના લોકો પાર્ટિસિપેટ કરશે? લગભગ અંદાજે 30 દેશના પ્રતિનિધિઓનો અમારો અત્યારે ટાર્ગેટ છે કે જે બ્રાસપાટની આઇટમો આપણી નિકાસ થાય છે. અમે બધા દેશની એમ્બેસી અને સરકારની જે સંસ્થાઓ છે એને અમે બધાને લેટર લખી અને અમે રૂબરૂ વિઝિટ પણ હોદ્દેદારો અને અમારા ચેરમેનોએ કરેલી અને એમાં પણ અમને એને ખાતરી આપેલી છે કે વધારેથી વધારે 30થી પણ વધારે દેશોનું પ્રતિનિધિઓ અહીંયા આવશે એવી અમને વિશ્વાસ છે. અને આજનો કાર્યક્રમ અમને જોતાં એવું લાગે છે કે અમારા 250 સ્ટોલો પણ નાના પડશે આવું લાગે છે. અને આને ભવ્યથી ભવ્ય બનાવવા માટે અમારે પૂરી ઇન્ડસ્ટ્રી જ અમારી સાથે છે અને આ ફર્સ્ટ ટાઈમ થઈ રહ્યું છે એટલે બધાને આનો એક ઉત્સાહ છે. अभी बाकी है. आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good evening ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful evening. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. मैं जया चौहान और रुशिता सोनी आज हम इस एग्जीबिशन लॉन्चिंग तथा MSME सेमिनार कार्यक्रम में ऑन बिहाफ ऑफ जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन की ओर से यहाँ उपस्थित मेहमानों अतिथियों का तहे दिल से पुनः स्वागत करते हैं. हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज के इस एग्जीबिशन लॉन्चिंग के एंड MSME सेमिनार को होस्ट करने का हमें मौका मिला. એ સાથે જ આજના કાર્યક્રમને આગળ વધારતા ડાયસ પર ઉપસ્થિત થવા હું વિનંતી કરીશ શ્રી લાખાભાઈ એમ કેશવાલા, પ્રમુખ શ્રી જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશન, શ્રી ઉમેશ શર્મા સાહેબ, આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી MSME, શ્રી બિપિન્દ્રસિંહ જાડેજા, પ્રમુખ શ્રી જામનગર ચેમ્બર, શ્રી દિનેશભાઈ ડાંગરિયા, પ્રમુખ શ્રી GIDC ફેઝ 2 એસોસિએશન, श्री सुरेशभाई पी हिरपरा, प्रमुख श्री जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री रितेशभाई शाह, CEO KND कम्युनिकेशन, श्री मनसुखभाई पी सावला, मंत्री श्री जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री हर्षदभाई पी पणसरा, सहमंत्री जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री भाईलालभाई गोदाणी,
खजांची जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री ओम प्रकाश भाई दुदाणी, ऑडिटर श्री जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री परेश भाई आर मालाणी, एडिटर श्री जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री राजास भाई चांगाणी, प्रोजेक्ट चेयरमैन जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, श्री अशोक भाई दोमड़िया, सभ्य श्री प्रोजेक्ट कमिटी, श्री जिनेश भाई एफ शाह, सभ्य श्री जामनगर फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन। आप सर्वने विनंती, आप आपનું गरिमापूर्ण स्थान ग्रहण करशो। वासुदेव कुटुंबकम, इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि व्यावसायिक दुनिया में भी हम सब एक परिवार है और परिवार की तरह है। इसी विचारधारा के साथ आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं एग्जीबिशन और लॉन्चिंग और MSME सेमिनार कार्यक्रम में। ગુજરાતનો જામનગર ભારતભરમાં બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રીનું હબ છે। અહીં 7,000 ફેક્ટરીઝ છે, 5 લાખ લોકોની જિંદગી જેના પર નિર્ભર છે। અહીંના પિત્તળના ભાગો તેમની ગુણવત્તા અને નિર્ધારિત માપદંડો માટે જાણીતા છે। જામનગરનો પિત્તળ ઉદ્યોગનો ઇતિહાસ વર્ષોથી ચાલ્યો આવ્યો છે। એ સાથે જ જામનગરના અગ્રગણ્ય ઉદ્યોગકાર, સેવન સીઝન રિસોર્ટ એન્ડ સ્પાના પ્રણેતા તેમજ અગ્રણી બિલ્ડર તેમજ જામનગર ચેમ્બરના પૂર્વ પ્રમુખ તેમજ સતત 3 વર્ષથી 3 ટર્મથી પ્રમુખ રહી ચૂક્યા એવા શ્રી લાખાભાઈ કેશવાલાને હું નિવેદન કરીશ, તેઓ આજના કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સ્વાગત પ્રવચન કરશે। સંસ્થાના નિમંત્રણને માન આપી જામનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો 2025ના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ તથા એમઈસીબીના વિકાસની તકો બાબતે જાણકારી આપવા માટે સેમિનારમાં ઉપસ્થિત એમઈસીબીના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર ઉમેશ શર્મા સાહેબ, જામનગર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી વિપેન્દ્રસિંહ જાડેજા, GIDC પ્લોટ એન્ડ શેર હોલ્ડર એસોસિએશનના પ્રમુખ દિનેશભાઈ ડાંગરિયા, મંચ ઉપર બિરાજમાન અન્ય મહેમાનો, અન્ય અલગ અલગ સંસ્થાઓમાંથી પધારેલા પ્રમુખશ્રી, મંત્રીશ્રી, હોદ્દેદારો, કારોબારી સદસ્ય સભ્યશ્રીઓ તથા સંસ્થાના પૂર્વ પ્રમુખો, મેટાલેબ મેનેજમેન્ટ કમિટીના સભ્યશ્રી તથા જામનગર ફેક્ટરી એસોસિએશનના કારોબારીના સભ્યશ્રીઓ તથા તમામ ઉદ્યોગકાર મિત્રો, ઉપસ્થિત પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના તમામ પ્રતિનિધિ તથા સંસ્થાના 75 વર્ષની વિકાસ યાત્રામાં પ્રત્યેક પરોક્ષ રીતે જે કોઈ પણ સાથ અને સહયોગ અને સહકાર મળ્યો છે તે તમામ શ્રેષ્ઠીઓ, આપ સૌનું સ્વાગત કરતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું। મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ સંસ્થા જ્યારે તેની સ્થાપનાના 75 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહી છે ત્યારે આજના સ્પર્ધાત્મક તથા હરીફાયુક્ત ઔદ્યોગિક વાતાવરણ જામનગર બ્રાસ ઉદ્યોગકારોને વૈશ્વિક વેપાર કરવાની તકો ઘર આંગણે મળી રહે એ આશયથી પહેલીવાર જામનગરને આંગણે તારીખ 23 થી 16 ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન જામનગર દ્વારકા હાઈવે એરપોર્ટ રોડ ખાતે જામનગર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો 2025નું આયોજન કરવામાં આવનાર છે। આ એક્સપો આયોજન માટે સંસ્થાએ KND કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ અમદાવાદ, જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત, MG બેગ પ્લાસ્ટ, ઇન્ડિયા સ્વિચ, વાઇબ્રન્ટ બરોડા, ઇન્ડિયન વિઝન 2020 વગેરે જેવા રાષ્ટ્રીય તથા કેન્યા પ્લાસ્ટ, શ્રીલંકા પ્લાસ્ટ, म्यांमार सोर्स, इंडिया सोर्स, आर्जेंटीना सोर्स, नाइजीरिया सोर्स, ईरान जेवा आंतरराष्ट्रीय कक्षाना एक्झिबिशन आयोजनનો 30 વર્ષનો અનુભવ છે તેની સાથે ટાઈપ કરેલ છે। એક્ઝિબિશન માટે આ સંસ્થાને ભારત સરકારના MSME, NIC, EPC, GIDC, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તથા ફેડરેશન ઓફ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન, જામનગર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, વડોદરા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,
વિઠ્ઠલ ઉદ્યોગનગર ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન, રાજકોટ એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશન, આજી જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન, લોધિકા જીઆઈડીસી એસોસિએશન, જીઆઈડી પ્લોટ એન્ડ શેર હોલ્ડર એસોસિએશન, જામનગર હાર્ડવેર મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન, એક્ઝિમ મેટલ મર્ચન્ટ એસોસિએશન, જામનગર ઇલેક્ટ્રોપ્લેટર એસોસિએશન, જામનગર બ્રાસ ફાઉન્ડરી એસોસિએશન, નાના ઉદ્યોગ સહકારી વસાહત લિમિટેડ, એમપીસા મ્યુનિસિપલ ઉદ્યોગનગર એસોસિએશન, પટેલ કોલોની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન, હાપા ઉદ્યોગનગર સંઘ લિમિટેડ, શ્રી નાના ઉદ્યોગ સહકારી વસાહત લિમિટેડ સંસ્થાઓનો સહયોગ મળેલ છે, જે બદલ તમામનો આભાર માનું છું. આ સંસ્થા દ્વારા એમઈસેમી અમદાવાદ, ફેડરેશન ઓફ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે મીટિંગ કરી વિદેશમાં જ્યાં બ્રાસપાટના મોટા પાયે નિકાસ કરવામાં આવે છે ત્યાંથી ખરીદારો આ એક્ઝિબિશન દરમિયાન ઉપસ્થિત રહે અને ઇન્ટરનેશનલ બાયર સેલર મીટ ગોઠવવામાં આવે તે માટે ખાસ કરીને ભારત સરકારના સંરક્ષણ, રેલવે, શિપિંગ, મરીન ટ્રાન્સપોર્ટ, ઉર્જા, ભારે ઉદ્યોગ, રાજ્ય પરિવહન વિભાગ વગેરે સાહસો એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લે તે માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક્ઝિબિશન દરમિયાન એમએસએમઈ માટે અલગ પેવેલિયન રાખવાનું, વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, B2B મીટિંગ યોજવાનું તથા ઔદ્યોગિક એકમો માટે લાભદાયી યોજનાઓ માટે વિવિધ વિષયો પર સેમિનાર યોજવાનું પણ આયોજન છે. આશરે 10,000 થી 12,000 ચોરસ મીટરના સંપૂર્ણ વાતાકુનુલ જર્મન મેડ ડોમમાં યોજનારા એક્ઝિબિશનમાં 250 કરતા વધારે સ્ટોર રાખવામાં આવેલ છે. આશરે 50,000 કરતા વધારે લોકો તેની મુલાકાત લેશે અને આશરે 1,000 કરોડથી વધુ બિઝનેસ ઇન્ક્વાયરીઓ જનરેટ થશે એવી આશા છે. ત્યારે સંસ્થાના આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ કહી શકાય તેવા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના એક્ઝિબિશનને સફળ બનાવવા માટે આપ સૌનો સાથ અને સહકાર મળી રહે તેવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા રાખું છું. વિશેષ હસ્તી લાગણી સાથે સર્વેનું ધ્યાન દોરું છું કે આપણી સંસ્થા જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશન 75 વર્ષ નિમિત્તે સર્વે સાથ સહકારથી મેટાલેબનું નવીકરણ ફેઝ 2 અને 3 માં મેટાલેબ યુનિટ 2 ચાલુ કરેલ. ઉપરાંત ન્યારા એનર્જીના સહયોગથી સંસ્થાના બિલ્ડિંગમાં સીએનસી ઓટોટેક ટ્રેનિંગ સેન્ટર અત્યંત વ્યાજબી દરથી શીખવવાનું શરૂ કરેલ છે, જેનો આપ સર્વે ઉદ્યોગકારો લાભ લેવા વિનંતી. અને અંતમાં આજ રોજ યોજેલા એક્સપોના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ તથા એમએસએમઈ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત આપ સર્વેનો તથા ખાસ કરીને આ એક્ઝિબિશનને પ્રથમ આવૃત્તિ માટે વિનામૂલ્યે જગ્યા આપનાર શ્રી કરશનભાઈ ભૂતિયા પરિવારનો પણ હું ખાસ આભાર માનીશ. મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. थैंक यू सो मच लाखा भाई केशवाला जी. समय को ना गवाते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. किसी भी शुभ कार्य को की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है. हम इस एग्जीबिशन लॉन्चिंग की शुरुआत भी दीप प्रागट्य के साथ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मंच में उपस्थित सभी अतिथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि सभी स्टेज पर दीप प्रागट्य के लिए प्लीज वो आ जाए. सर्वप्रथम वंदना श्री गणेश की, क्योंकि उनकी वजह से है कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की. गणेश वंदना के साथ आइए शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं
એ સાથે જ હું નિવેદન કરીશ શ્રી સુરેશભાઈ પી હિરપરા ઉપપ્રમુખ શ્રી જામનગર ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશન તેઓ શ્રી માનનીય શ્રી વિપેન્દ્રસિંહ જાડેજા પ્રમુખ શ્રી જામનગર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત અભિવાદન કરશે। मैं निवेदन करूंगी श्री राजेश भाई बी चांगानी जी से, प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन जी से, कि माननीय श्री दिनेश भाई डांगरिया जी प्रमुख श्री GIDC प्लॉट एंड शेड होल्डर्स एसोसिएशन का स्वागत फूलों से करें। હું નિવેદન કરીશ માનનીય શ્રી ઉમેશ શર્મા સાહેબ અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી MSME અહેમદાબાદ તેઓ જામનગરના બ્રાસ ઉદ્યોગ માટે વિકાસની તકો અને MSE વિભાગની વિવિધ સ્કીમો માટે પ્રેઝન્ટેશન આપે। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश शर्मा, सहायक निदेशक MSME विकास कार्यालय अहमदाबाद से आए हैं। और यहाँ पे जो फैक्ट्री जामनगर फैक्ट्री ओनर एसोसिएशन है, मेरे लाखा भाई, उनके सहयोगी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि जो सर आप हमें ये मौका दिए कि जामनगर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं एज ऑन डेट, उनके विकास के लिए जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ है, जिसके तहत उनको आगे लाया जा सकता है, इसका हमें मौका दिया। मुख्य रूप से जो आप पार्टिसिपेंट हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में, ये भी बहुत ही विषय की बात है कि जितने लोग एक सिंगल विंडो सिस्टम में इकट्ठा हो पाना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो इसके लिए आपको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि आज MSME क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे लोग जानते हैं MSME क्या है, मंत्रालय क्या है, किस तरह से काम कर रही है। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री हैं जो लाभ लेने से आज भी वंचित हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो हमें इस तरह का मौका मिला ताकि हम आपको अवेयर कर पाएँ। सबसे पहले once again वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट, ये हमारा MSME क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। MSME मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हर एक स्टेट में कार्यरत है, जिसका गुजरात के लिए हमारा मेन कार्यालय अहमदाबाद ऑफिस है, जो अभी हमारी नई ओन बिल्डिंग है सिम्स हॉस्पिटल के पीछे से 16 सिम्स हॉस्पिटल के पास MSME टावर के नाम से। इसके अलावा हमारा 2 ब्रांच ऑफिस है, एक आपके नियर राजकोट में और एक सिलवासा में, एक सौराष्ट्र के लिए और एक साउथर्न के लिए। ये हमारी जो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर है, जो पूरे देश के लिए पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, उस पॉलिसीज़ को हम फ्लोर पे, शॉप फ्लोर पे इंडस्ट्री वाइज जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। इसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी है, जो DIC जिला उद्योग केंद्र है, जिसके तहत भी आप जानते होंगे जो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की भी स्कीम्स होती है जिसके तहत बेनिफिट देते हैं। और इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के भी ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके ऊपर हम विगत बार से चर्चा करेंगे और एक एक स्कीम से आपको हम अवगत कराएंगे। आप लोग को केवल थोड़ा सा कॉन्शियस होकर समझना है और पूछना जरूर है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है जो आपने नहीं समझे किस तरह से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या हमें आज तक बेनिफिट्स ही नहीं मिला, हमने एप्लीकेशन किया था, हमें एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, फिर भी हमें सहायता नहीं मिली, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझें और क्वेश्चन जरूर करें हमसे, तो हमें लगेगा कि हमें और थोड़े लर्निंग करने की ज़रूरत है उस एरिया को, जो एरिया आज भी हमारे लिए वीक हो जाते हैं। क्योंकि आप हमसे नहीं क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जो हम बोले या तो आप पूरी तरह समझ गए, नहीं तो फिर बिल्कुल ही नहीं समझे। आगे
ये एमएसएमई डिफिनेशन आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। कोरोना काल जो 2020 का जो साल था, सबसे मनहूस साल बोल सकते हैं हम, जो इंडस्ट्री से लेके आदमी तक सारे लोग त्रस्त थे, पूरे देश में बुरी स्थिति थी। उस बीच में हमारी जो प्रीवियस उद्योग आधार मेमोरेंडम था, जो एमएसएमई सर्टिफिकेट था, उसको रिवाइंड करने की ज़रूरत पड़ी, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। और 26 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिवाइज करके 1 जुलाई 2020 से इम्प्लीमेंट किया। और उसके तहत एमएसएमई का जो डिफिनेशन था, आप लोग सब जानते होंगे, जो यहाँ पे 10 साल 15 साल 20 साल से सर्विस फैक्ट्री चला रहे हैं, वो ऑलरेडी अवेयर होंगे। जो पहले जो हमारा एमएसएमई का सर्टिफिकेट था, वो जिला उद्योग केंद्र से इशू होते थे। पहले हमें प्रोविजनल के लिए एप्लीकेशन करने पड़ते थे, फिर रिस्पेक्टिव जिला उद्योग से इंस्पेक्टर आते थे, हमारे यूनिट का विजिट करते थे। विजिट करने के बाद भी हमें कई धक्के लगने के बाद हमारे लिए सर्टिफिकेट इशू होते थे, वो भी लर्निंग। फिर उस लर्निंग सर्टिफिकेट के ऊपर जब हमारी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती थी, सुचारू रूप से चलने लगती थी, फिर हमें फाइनल के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता था और फिर हमें फाइनल EM पार्ट 2 मिलता था। उस सर्टिफिकेट को वेव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 सितंबर 2016 को उद्योग आधार मेमोरेंडम लेके आई थी, UAM सर्टिफिकेट, जो सेल्फ डिक्लेरेशन था। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने फार्म का, और उसके ऊपर आपकी जो भी हमारी गवर्नमेंट की सब्सिडी, स्कीम्स, बेनिफिट्स, सारे का बेनिफिट्स ले सकते थे। लेकिन उसमें बहुत सारे शॉर्टफॉल थे, जिसकी वजह से 1 जुलाई 2020 को वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया और उद्योग आधार मेमोरेंडम लेके आया। इसके पहले जो हमारा एमएसएमई का डिफिनेशन हुआ करता था, वो मैक्सिमम डिफिनेशन था, मैक्सिमम 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 5 करोड़ सर्विस प्रोवाइडर के लिए। उसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं था, केवल इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरीज थी। तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए जो सर इसमें टर्नओवर का भी क्राइटेरिया को ऐड करिए और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को थोड़ा सा इंक्रीज करिए। तो इसको रिवाइज करके गवर्नमेंट ने जो किया, माइक्रो आप लोग देख पा रहे होंगे, माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ जो एज ऑन डेट अभी चल रहे हैं, और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का स्लैब रखा गया। दूसरा जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, उनका क्राइटेरिया जो पहले 5 करोड़ था उसको बढ़ा के 10 करोड़ किए और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ किए। और जो मीडियम था उसका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ था, उसको बढ़ा के 50 करोड़ किया गया है और टर्नओवर अप टू 250 करोड़। ये रेंज में जो भी यूनिट आते हैं, ऑल आर एलिजिबल टू अवाइल बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, any other ministries who are providing benefits for MSMEs. नेक्स्ट, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है। आज भी आपको जान के हैरानी होगी, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही मुफ्त है, कम्प्लीमेंट्री है। आपको इसके लिए 1 रुपया की भी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज भी जिनके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो फाइल कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा ये वेबसाइट है udyamregistration.gov.in, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसके लास्ट में या तो nic.in होगा या gov.in होगा, दूसरा और किसी साइट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है। हमारे ऑफिस में एक केस आए जिन्होंने 2.5 लाख रुपया पेड किए हैं जानकारी के अभाव में, और उसके बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिले। फिर वो पूछते पूछते हमारे ऑफिस आए, फिर हमने उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन ट्रैक करके सर्टिफिकेट बना के उनको हमने प्रोवाइड किया। तो इसके लिए आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, हमसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको पोर्टल पे आना है, सिंगल पेज का पोर्टल है। एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम है। केवल सेल्फ डिक्लेरेशन, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आपका जो टर्नओवर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज है, कितने आदमी काम करते हैं, एक अकाउंट डिटेल चाहिए, आपका जो पैन कार्ड है कंपनी का,
आज भी हम देख रहे हैं जो प्रोप्राइटरशिप हैं वो अपना ही पैन कार्ड यूज कर रहे हैं। तो उनको चाहिए, कोई भी हो, आप अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं तो कोशिश करिए पैन कार्ड सेपरेट करिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पैन कार्ड हमारा एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसमें हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन उसमें पंच होते हैं। अगर आप एज ए प्रोप्राइटर फैक्ट्री चला रहे हैं, सिंगल पैन कार्ड आप अपने लिए भी यूज कर रहे हैं और फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फालतू के टैक्स पेड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन भी रिफ्लेक्ट होंगे जिसके ऊपर में आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोप्राइटरशिप है, अगर आपका सेम पैन कार्ड यूज हो रहा है तो आप कोशिश करिए उसको सेग्रीगेट करने का, फैक्ट्री के नाम का पैन कार्ड बनाइए, क्योंकि अकाउंट अलग है, बिजनेस अलग है, हम अलग हैं। हम ओनर हैं लेकिन हमारा ओनर और फैक्ट्री से कोई ताल्लुका नहीं है बिजनेस पर्पस के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट रहेंगे, बहुत ही बेनिफिट इन सेंस, अगर आपको कल के दूसरी फैक्ट्री डालनी है, जैसे आज आपके पास में एक फैक्ट्री है, कल के आप दूसरा फैक्ट्री डालने का सोच रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप एक पैन कार्ड में तो कर नहीं पाएंगे, आपको दूसरा पैन कार्ड बनाना ही पड़ेगा। और दूसरा पैन कार्ड जब तक बनेगा मालूम पड़ेगा दूसरे फैक्ट्री का भी ट्रांजैक्शन आपके सिंगल पैन कार्ड में रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो भी आपको एक आगे जाके हार्म करेगा। तो आप इनिशियल स्टेज से ही उसको सेग्रीगेट कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो आप पोर्टल देख रहे हैं, सेम ऐसा ही पोर्टल खुलेगा, आपको दूसरे कोई पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका एक आधार नंबर चाहिए और एक बैंक डिटेल चाहिए, और कोई डिटेल नहीं चाहिए। उसके बाद जो है सिंगल फॉर्म है उसमें आप डिटेल भर दीजिए। एक चीज़ और हमारे नोटिस में आया है कि जो हम समय के साथ अपग्रेड नहीं करते हैं, जैसे आज आप कोई लोकेशन में फैक्ट्री डाल रहे हैं, वहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा है, दूसरे जगह पे आपने प्लॉट परचेज किया, वहाँ पे सेट बना के वहाँ पे फैक्ट्री शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रीवियस लोकेशन के ही एड्रेस सारे मेंशन रहते हैं। फिर उसकी वजह से आपको कहीं पे भी हर जगह पे रुकावट का सामना करना पड़ेगा। जब विजिट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो वो लोकेशन पे देखेगा यहाँ पे तो फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आपकी फैक्ट्री तो चल रही है, आपने एड्रेस अपडेट नहीं किया है, इसकी वजह से भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप कहीं पे भी कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको काइंडली जो है समय रहते अपडेट करते रहिए, ताकि आप कहीं पे भी निर्विघ्न होकर अपडेट दिखा पाएँ, डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएँ। नेक्स्ट, ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमने बोल रहा था, इसमें जीएसटी नंबर भी है, लेकिन जीएसटी नंबर इनिशियल स्टेज में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लेके आई थी तो उन्होंने मैंडेटरी रखा था, लेकिन बहुत सारे जो हमारे एमएसएमईज हैं उसमें हमें 150 रुपया से लेके 250 करोड़ तक वाले सारे लोग हैं। तो छोटे छोटे लोग का रिप्रेजेंटेशन था कि जो सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो 40 लाख तक जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ बोल रहे हो जीएसटी इधर डालना मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट ने विदिन 6 मंथ जीएसटी विड्रॉल कर लिया, और एज ऑन डेट विदाउट जीएसटी आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं बहुत सारे इश्यूज होते थे, इसके लिए इसको हम लोग ने लॉक करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग आधार कार्ड की कॉपी कहीं पे भी देते रहते हैं, बैंक अकाउंट हो, LIC हो, इंश्योरेंस हो, कहीं पे भी देते रहते हैं, तो वहाँ से फाइलिंग हो रहे थे विदाउट OTP। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके कंसर्न के बगैर आपका डॉक्यूमेंटेशन कोई मिसयूज ना करे और आपकी जानकारी के बगैर कोई सर्टिफिकेट भी जनरेट ना करे, इसके लिए उसमें OTP का प्रोविज़न रखे हैं ताकि वो आप सिक्योर रह सकें। फिर पैन कार्ड चाहिए और एक बैंक डिटेल चाहिए, और सिंगल पेज का विंडो है, उसको आप ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। किन्हीं को कोई भी तकलीफ हो तो आप नज़दीकी जो जिला उद्योग केंद्र हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस को मेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। आने की सलाह एज ऑन डेट हम अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ऑफिस आने की सलाह नहीं दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है आने की। आप प्रॉब्लम बताइए, मेल करिए, और आपका कोई भी मेल, हमारी कोशिश रहती है विदिन वीक क्लोज हो जाए, 1 वीक से ज़्यादा आपका मेल पेंडिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट,
ये हमारा एक मोबाइल ऐप भी है, माई MSME करके। आज क्या है, हम पूरे देश की पूरी दुनिया बोलिए, हम लोग मोबाइल के इतने हैबिचुअल हो गए हैं, जो मैक्सिमम काम हम लोग मोबाइल से ही करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए माई MSME करके एक ऐप भी लाई है, जो एंड्रॉयड के लिए है। आप उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं डाउनलोड हो रहा है तो भी आप my.msme.gov.in पे जाके हमारी जितनी भी पॉलिसीज है, इस तरह के विंडोज आएंगे, उसको एक्सेस करके आप पढ़ सकते हैं। कहीं पे कोई विंडो जितने आपको देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है। आप इसमें जब आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर जाके आपके मन में क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा थोड़ा सुझाव रहेगा, जब आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, हमारे पोर्टल पे आइए, कोई भी स्कीम जो आपको लग रहा है, आपसे जो रिलेवेंट है, उसके ऊपर में थोड़ा सा स्टडी करिए। उसके बाद हमारी ऑफिस से संपर्क करिए, तो हम आपको गाइड कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक हम समझा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, ये एक हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होता है। आप लोग शायद अवेयर नहीं होंगे, ये जो हमने वेंडर डेवलपमेंट का जो प्लान रखे हैं, वेंडर डेवलपमेंट एक प्रोग्राम इस तरह का रहता है। हमने राजकोट में भी किए थे काफ़ी टाइम कोरोना के पहले, और बहुत ही फ्रूटफुल एग्जीबिशन रहा था। उस एग्जीबिशन की मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताऊं। आज हम लोग अपनी फैक्ट्री में जो कुछ भी बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी प्राइवेसी रहे, हम उसको किसी को बताएं नहीं। कोई जान जाएगा, समझ जाएगा, हमारा टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। आज हर चीज़ पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, और आप जानकारी की वजह से, हमने राजकोट में 2018 में एग्जीबिशन किया था। वहाँ पे 2 स्टॉल थे, एक स्टॉल अहमदाबाद का था, दूसरा स्टॉल राजकोट का था। दोनों स्टॉल इंजीनियरिंग आइटम बना रहे थे, एक पार्सली बना रहा था, एक कुछ आइटम इंपोर्ट करके मशीन बना रहे थे। राजकोट से बना हुआ सामान अमेरिका जा रहा है, सेम सामान अहमदाबाद इंपोर्ट हो रहा है। जानकारी के अभाव में जब उनको मालूम पड़ा, उन्होंने जब देखा, वो संजोगी है जो दोनों एक जगह पे आए स्टॉल। बाकी तो 300, 400, 500 स्टॉल रहते हैं। आदमी पूरे एग्जीबिशन में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का भी एग्जीबिशन रहे, तो कोई भी इंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं है जो सारे स्टॉल का डीपली भ्रमण कर पाएँ। वो जा भी नहीं पाते हैं, टाइम नहीं है उतना, क्योंकि उनके ऑलरेडी स्टॉल पे अगर विजिटर इंक्वायरीज हैं तो वो छोड़ के जाएंगे नहीं। उन्होंने देखा, समझा, 3-4 दिन बेचारे परेशान रहे। फिर उन्होंने बतलाया कि सर इसका तो अभी हम कर लेंगे सुधार, हम राजकोट से सीधा अहमदाबाद में देंगे। और सामान की कॉस्ट एवरेज 20 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी। जो सामान 100 रुपया की थी, वो लगभग 2000 में इम्पोर्ट हो रही थी। तो हमारी कौन सी आइटम कहाँ पे यूज हो रही है वो हमें खुद नहीं मालूम है। जब तक हम उसके रिस्पेक्टिव यूनिट में मिलेंगे, उनको समझेंगे, उनको बताएंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये सामान का यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं और इस तरह से यूज भी हो सकते हैं। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लेके आई थी। 1 अप्रैल 2014 को आई थी। 2014 को आई थी। तो हमारा क्या है, हम लोग सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग बिजनेस करें, कुछ भी करें, हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे काम करते हैं। जब तक हमें एडिशनल फोर्स ना लगे, हम कोई मूव करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। जो जिस स्थिति में है उधर ही चलते रहेंगे। हम जहाँ से सामान प्रोक्योर कर रहे हैं वहाँ से ही खरीदते रहेंगे। उससे बढ़िया, उससे सस्ता, उससे क्वालिटी के प्रोडक्ट उसके बगल में मिल रहे हैं, हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, और बताएगा नहीं, उस पर एडिशनली फोर्स लगेगा, तब हम उस पर काम करना चालू करेंगे। आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जहाँ से हम कोई भी सामान प्रोक्योर करते हैं, इवन दो राशन भी खरीदते हैं, तो जिस दुकान से आप रेगुलर खरीदते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी जाके वहाँ पे रुके। हम उसके बगल में क्या बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, उसके जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। और उस दुकान में अगर वो सामान अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेट सामान लेके भी आ जरूर जाते हैं, वो सामान को खोजने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 1 अप्रैल को लेके आई थी, और जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट,
PSUs, CPSUs है, सबको रिक्वेस्ट किया था जो आपका ईयरली जो प्रोक्योरमेंट है उसका एटलीस्ट 20% माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज से खरीदिए ताकि उनका प्रमोशन हो। और उसके साथ में 357 मतलब 357 आइटम की लिस्ट भी पब्लिश किया था जो एटलीस्ट दिस मटेरियल मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। लेकिन क्या है, सरकार की स्कीम ऐसे ही चलती रहती है, अच्छे से चलेगी तो फिर जोर शोर से चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर ऐसे ही बंद पड़े रहेगी। 2 साल इस स्कीम पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, 2 साल तक स्कीम में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सारे PSUs कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि PSUs जो है आज ONGC है, गेल है या रेलवे है, IPCL है, OIOCL है, कोई भी है, ये सब क्या क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। ये लोग छोटे छोटे आइटम भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर छोटे आइटम भी फेल हो जाएगा तो वहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो जाएगा। तो इस पे वो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे और वो छोटे छोटे पार्ट्स भी इंपोर्ट कर रहे थे फॉरेन से। 2016 2 साल के बाद मिनिस्ट्री इस पे स्ट्रिक्ट हुई और सारे सेक्रेटरीज को उन्होंने DO लेटर लिख के बोला जो नहीं ऐसा चलेगा नहीं, आपको 20% प्रोक्योरमेंट करना ही है और हर क्वार्टरली ये रिव्यू कर लिए आपका प्रोक्योरमेंट का डिटेल MSME मंत्रालय को सबमिट करना है ताकि हम रिव्यू कर पाएँ। तब जाके सारे लोग जगे, तो सारे डिपार्टमेंट से हमें एक ही चिट्ठी आता है जो सर आप बोल रहे हो खरीदने के लिए, लेकिन कहाँ से खरीदें, हमें MSME का पता तो दो, किससे खरीदूं, कौन ये आइटम बना रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं है। 1 महीना लगा हमें गांधीनगर कमिश्नर ऑफिस में जाके सारा डेटा कंपाइल करने के लिए। 2016 में उस समय 5.5 लाख MSME कार्यरत थे हमारे पूरे गुजरात में। उसका हमने एक डेटाबेस बनाया एक्सेल में, उसको फिर 75 MB का CD बनाया। उस समय CD का दौर था, पेन ड्राइव था नहीं उतना कारगर। CD बनाया और लगभग 200 CD बनाया। सारे PSUs को हमने कम्प्लीमेंट्री बाय पोस्ट से भेजा, जो इसमें सारे MSME गुजरात के डेटा हैं। आप उसमें रिस्पेक्टिव यूनिट को ढूंढिए, उसको पता करिए, उसके साथ ज्वाइन होइए और उसको आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शेयर करिए ताकि वो आइटम बना पाए। आज हमारे जो इंडिया की जो MSEs हैं ये हर चीज़ में कैपेबल हैं, केवल इनको ज़रूरत है अपॉर्चुनिटी की। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ भी बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो नहीं बना सकते हैं, बस केवल उनके साथ जुड़ना है। फिर वो लोग चालू हुए और 2016 के बाद चालू होने के बाद आपको सुन के हैरानी होगी, विदिन 2 ईयर 16 से 18 जाते जाते ये जो आप गाइडलाइन देख रहे हैं भारत सरकार का गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, ये 9 नवंबर 2018 का है, जिसमें 20% को बढ़ा के 25% किया गया। वो 20% का जो स्लैब था वो 2 साल के अंदर अचीव होकर 50% पहुँच गए। बहुत सारे जो PSUs हैं वो डेटा मैं अभी आगे शेयर करूँगा। मतलब मोर देन 50% अचीव हो गए। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बोला इसमें स्लैब बढ़ाते हैं 5% का, और उन्होंने 20% से 25% किया। जो 20% का स्लैब था उसमें 2 स्लैब थे, 4% SC/ST के लिए और 16% जनरल कैटेगरीज के लिए। 25% उन्होंने किया, उसमें 3% वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जगह केंद्रित किया है। अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, 3% वुमेन के प्रोक्योरमेंट पे भी हम आए नहीं हैं, या 4% SC/ST के प्रोक्योरमेंट पे भी हम नहीं आ पाए हैं। जनरल में ज़्यादा हैं, जनरल में हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, लेकिन अभाव है उसका भी। नेक्स्ट, ये जो हमने बोला था ये कुछ डेटा लाया हूँ। ये 9 नवंबर 2018 को जो एनुअल प्रोक्योरमेंट था उसमें ये स्लैब लाया गया था 5%, 1% SC/ST का स्लैब बढ़ाया गया, 3% वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस किया 25% में। और इसमें ये जो C वाला जो एक कॉलम है, इन टेंडर पार्टिसिपेटिंग MSEs क्वाइटिंग प्राइस विद इन प्राइस बैंड ऑफ L1 प्लस 15% shall be allowed to supply 25% of total tender
वैल्यू बाय ब्रिंगिंग डाउन दियर प्राइस टू L1। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं बतलाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कोई भी टेंडर होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट सेक्टर के हो, आइटम की जो खरीदारी होती है वो L1 से होती है, लोएस्ट वन, जिसका प्राइस सबसे कम होता है उससे खरीदारी होती है, जो हमारी गवर्नमेंट की GFR है, जनरल फाइनेंस रूल है, उससे बियॉन्ड कोई जा नहीं सकता है। इसमें जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें 15% तक का एक स्लैब इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। जैसे कोई आइटम है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, कोई लार्ज इंडस्ट्रीज़ वाले आपके जामनगर में अंबानी जी का है, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, जो रिलायंस अगर उस आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ कोट करता है और बीइंग MSC अगर हम माइक्रो स्मॉल में फॉल करते हैं, हमें तो पता नहीं है टेंडर का रेट कितना आएगा दूसरे से, हम तो अपना रेट कोट करेंगे जो हमारे लिए परवड़ेगा। अगर हमने L1 + 15% मीन्स 100 + 15 115 रुपया तक भी अगर हमने टेंडर वैल्यू कोट किया है तो भी हमारा टेंडर रिजेक्ट नहीं होगा, हमारा टेंडर एक्सेप्ट होगा और हमको रेट निगोशिएशन के लिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉल करेगी, जो सर आप आइए और रेट जो है L1 यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है 100 रुपीज़ में सप्लाई करने के लिए एग्री है, आपने 100 + 15 115 रुपया रेट कोट किए हैं, अगर आप 100 में सप्लाई करने के लिए एग्री होते हैं तो आपका जो 25% का रिजर्वेशन है वो ऑर्डर हम आपको देंगे, अगर हम L1 पे सप्लाई करने के लिए एग्री होते हैं तो। अभी ये तब होगा, ये कंडीशन पहला है जो स्प्लिटेबल है, जैसे 4 सामान खरीदना है तो 3 रिलायंस से खरीदेगा, चौथा हमसे खरीदेगा। लेकिन अगर आइटम ही एक है तब, अगर वो आइटम स्प्लिट करके हमको नहीं दे सकता है, अगर आइटम ही सिंगल है, उस कंडीशन में पूरा टेंडर हमको मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है। इस कंडीशन में उसको नहीं मिलेगा अगर हम L1 रेट पे सप्लाई करने के लिए एग्री होते हैं तो हमें 2 चीज़ हमेशा केयर करना चाहिए। पहला तो हम जो रेट कोट कर रहे हैं कोटेशन पे, वो रेट सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, जुडिशियरी होनी चाहिए, लॉजिकली होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी रेट कोट कर देंगे वो ज़माना आज नहीं है। आज मैक्सिमम आइटम जो मार्केट में रोटेट हो रहे हैं, जो परचेज हो रहे हैं, इवन दो इम्पोर्ट हो रहे हैं, लगभग का मार्केट वैल्यू हमको पता है। अब उस मार्केट प्राइस में हम नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए रिलायंस जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अब वो 100 रुपये में बना रहा है, हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें उसकी गलती नहीं है ना, गलती हमारी है। और जब तक हम मार्केट को बीट नहीं करेंगे, जो L1 प्राइस है उसको हम बीट नहीं करेंगे, तो हमें टेंडर मिलेगा नहीं। हमें निगोशिएशन के लिए बुलाया, अब हमारी उसमें बैठ ही नहीं रहे, हम सारा कॉस्ट जोड़ रहे हैं तो मेरा 105 रुपया कॉस्ट हो रहा है, अगर हम प्रॉफिट नहीं लें तो भी, तो हम तो टेंडर नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना। तो इसके ऊपर भी हमें वर्कआउट करना है, जो किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट का, हम अपने आइटम का रेट जो है कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से रखें, और उसके ऊपर में निरंतर कोशिश करते रहने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कोई मार्केट में एस्टेब्लिश कंपनी है, उसको अगर हमको टक्कर देना है तो हमें सबसे पहले वर्कआउट करना है कि कस्टमर हमारा सामान क्यों खरीदे, जो ऑलरेडी खरीद रहा है। अब हम रोज़ सेलो का पेन खरीद रहे हैं, आप एक नया ब्रांड लेके आएंगे मार्केट में, उससे सस्ता भी अगर दे रहे हैं तो भी कस्टमर 10 बार सोचेगा, पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि जिसके साथ उसकी कंफर्टेबिलिटी बनी हुई है, जिससे वो लिख रहा है, म्यूचुअल है, पूरा अच्छे चल भी रहे हैं, तो वो उसको 2 रुपया या 3 रुपया के लिए चेंज नहीं करना चाहेगा। तो उसके ऊपर हमें वर्कआउट करके उसके साइकिल को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और मार्केट में हम कोई भी आइटम बना रहे हैं, कितना भी अच्छा आइटम बना रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब तक वो मार्केट में बिकेंगे नहीं, जब तक हमें रिवेन्यू नहीं आएंगे, उस रिवेन्यू में भी प्रॉफिट नहीं होंगे, तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं आएगा। तो हमें उसके ऊपर में भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है।
तो ये पॉलिसी इसके लिए ही है, हमारे माइक्रो स्मॉल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। और इसमें एज ऑन डेट आपको मालूम होगा गवर्नमेंट की जो खरीदारी है वो 2 चैनल से होते हैं ओनली। पहले जो हार्ड कॉपी ओपन टेंडर होते थे वो सारे एज ऑन डेट बंद हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है तो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन से होगा उतना ऑफलाइन से नहीं होगा। इसके लिए सारी पॉलिसीज एज ऑन डेट ऑनलाइन है। हमारी गवर्नमेंट की जो भी खरीदारी होती है वो एक CPP पोर्टल है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पोर्टल, और दूसरा है जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट है, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जो एज ऑन डेट जितनी भी मिनिस्ट्रीज 72 मिनिस्ट्रीज है एज ऑन डेट अपने भारत देश में, और लगभग 245 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, PSUs, CPSUs, अंडरटेकिंग, सारे की खरीदारी जेम और CPP पोर्टल से होती है। उसके बाहर 1 रुपया की खरीदारी नहीं है। तो जो भी एज ऑन डेट अगर जेम पे आप रजिस्टर्ड नहीं है, और वो दोनों पोर्टल लिंक हैं, आप CPP पोर्टल पे जाएंगे तो जेम पे जो पब्लिश हुए हैं टेंडर वो भी दिखेंगे, आप जेम पोर्टल पे आएंगे तो CPP पोर्टल पे पब्लिश टेंडर भी आपको दिखेंगे। तो अगर आप जेम पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, CPP पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर इमीडिएट रजिस्टर्ड होइए, क्योंकि उसमें कोई खर्चे नहीं है। जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 5000 रुपया का खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है। इसके लिए उद्योग भवन जो गांधीनगर है ब्लॉक नंबर 1, उसमें 2nd फ्लोर पे जहाँ पे कमिश्नर इंडस्ट्रीज बैठता है, वहाँ पे जेम की रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। आपको कोई तकलीफ़ है, आप जेम पोर्टल पे आएंगे gem.gov.in पे, तो वहाँ पे सारे PPT वीडियो सब अपलोडेड है, जिसको पढ़ के समझ के आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है और आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। एक बार आपको समझना है जो किस तरह से रजिस्टर्ड करके प्रोडक्ट अपलोड करना है, फिर आप अपना रेगुलर प्रोडक्ट अपलोड करते रहिए। और सप्लाई का चेन भी उसमें कोई बैंड नहीं है जो आपको यहाँ तक ही सप्लाई करना है। आपकी कैपेबिलिटी जहाँ तक है अक्रॉस गुजरात, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग MP, अक्रॉस दी कंट्री, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, जहाँ तक आपका स्लैब है वहाँ तक आप स्लैब रख सकते हैं वहाँ पे सप्लाई करने की। क्योंकि इसके बाहर आप गवर्नमेंट में सामान नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि एज ऑन डेट भी हम प्राइवेट फार्म में सामान बेचते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है सबसे बड़ा खरीदार है गवर्नमेंट हमारा, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ये MSME संबंध पोर्टल है, आप लोग इस पर जरूर आइए, संबंध.msme.gov.in। इस पर आप आएंगे तो इस पर सारी जानकारी मिलेगी, कितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पर ऑन बोर्ड है, कितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, कितने MSME रजिस्टर्ड है, कितना टेंडर फ्लोट हो रहे हैं, रोज़ के हज़ारों टेंडर फ्लोट हो रहे हैं। हमारे लाख कौन से टेंडर है उस पर थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है, समझना है, उसके रिस्पेक्टिव टेंडर को भरना है और उसका बेनिफिट्स लेना है। नेक्स्ट, ये हम कुछ डेटा लाए थे, अभी 23-24 का पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए हम नहीं ला पाए हैं। ये 22-23 का डेटा केवल आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, जो लगभग 2000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट माइक्रो स्मॉल से किए हैं गवर्नमेंट, जिसमें 668 करोड़ का प्रोक्योरमेंट जो है SC/ST से, और लगभग मान के चलिए ना ये 9 करोड़ का प्रोक्योरमेंट जो है SC/ST से, और 13 करोड़ का प्रोक्योरमेंट जो है वुमेन से किए हैं। ये अभी 24 का आप देखेंगे तो लगभग 5000 के करीब प्रोक्योरमेंट है, अभी डाउनलोड करने नहीं दे रहा है सिस्टम, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंध पे कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, ये हमने कुछ डेटा लाया था जो खरीदारी कितना कर रहे हैं। ये 21-22 का अगर आप देख रहे हैं, हम जानबूझ के 21-22 का लाए हैं। जो कोरोना काल था 20-21 में, हम लोग सब अवेयर हैं, 21-22 में पूरा ग्लोबली मंदी था। उस पीरियड में भी जो खरीदारी था, आप अगर नज़र उठा के देखेंगे, 16,000 करोड़, 10,000 करोड़,
5,500 करोड़, 8,000 करोड़, मतलब जो टारगेट था हमारा 25% का, वो मोर देन 50%, 62% तक जो है MS गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सीड किया है और इतना प्रोक्योरमेंट किया है। आपको ज़रूरत है केवल जुड़ने की। आप एक बार जुड़ते हैं, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो सिंगल नहीं रहेगी, फिर आपकी जो है वो मल्टीपल यूजेज हो जाएगी, फिर आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट, ये हमारा एक डिले पेमेंट है। पहले तो संबंध था जो हम पहले उनके साथ जुड़े, लेकिन किसी कारण से मनमुटाव हो जाए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा है डिले पेमेंट एक्ट का। ये इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है जो हम कितने प्रतिशत सत्य हैं। सत्यता बोले तो जैसे हमने 100 रुपया का सामान सप्लाई किया तो हमारा टैक्स इनवॉइस भी 100 रुपीज़ का ही होना चाहिए। अब 100 रुपया का सामान सप्लाई किए और आपने 80 रुपया का टैक्स इनवॉइस जनरेट किया, 20 रुपीज़ आपने कैश ट्रांजैक्शन किया, तो जो टैक्स इनवॉइस था उतना आपको पेमेंट मिल गया। फिर 20% के लिए अगर आप 20 रुपीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। वो सामने वाला ये प्रूव कर देगा सर मेरा बात ही 80 रुपया का हुआ, 100 रुपया का मेरा बात ही नहीं हुआ था। ये देखिए 80 रुपया का PO है, 80 रुपया का हमने सप्लाई भी किया है, 80 रुपया हमने पेमेंट भी किया है, बात खत्म होगी एक लाइन में। तो आपकी ऑथेंटिसिटी जब तक होगी तभी आप इसमें आ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मंच है। आज हमारे पास में 51 लाख, एक 51 लाख और एक 80 लाख का हमने केस रिजॉल्व करवाए हैं। उनका एप्रिसिएशन लेटर भी अभी लास्ट वीक हमारे ऑफिस में आया डिले पेमेंट का। तो इसमें आपका पैसा बाकी है, किसी के यहाँ भी सामने वाला MSCs है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है जो हमारे पास पहले आएगी उनका हम सपोर्ट करेंगे। सामान आपने सप्लाई कर दिया, सामने वाले ने सामान एक्सेप्ट भी कर लिया, आपको पेमेंट नहीं दे रहा है ये बोल के जो आपने सैंपल में जो क्वालिटी दिया था वो क्वालिटी आप सप्लाई नहीं की, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखे हुए हैं 21 डेज़ का। जैसे आपने किसी भी सामान का सप्लाई हमारे ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, 21 डेज के अंदर हमें आपको रिवर्ट करना है जो आपका सामान एज पर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, एज पर टेक्निकलिटी स्पेसिफिकेशन नहीं है, अदरवाइज वो सामान ड्यू टू बी कंसिडर्ड हो जाएगा और हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्रोविज़न है। तो इसके लिए आपको कहीं से भी अगर ख़राब सामान मिल जाता है तो आप डिले मत करिए। आपको लग रहा है ये सामान हमारे स्पेसिफिकेशन के लायक नहीं है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लायक नहीं है, हमने जो मांगा था वो नहीं दिया, तो आप विदिन 21 डेज उनको रिवर्ट कर दीजिए थ्रू राइटिंग। और एज ऑन डेट सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग है मेल। ईमेल अपने पब्लिक डोमेन में भी पड़ा रहता है, सामने वाले के पास भी रहेगा, अपने पास भी सेफ रहेगा। फिर हम चिट्ठी भेजेंगे, मिला नहीं मिला, कहाँ डिलीवर हुआ, उस पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेल करिए, उसको रिकॉर्ड बनाइए और उसके बेस पे आप जो है हमारे MSCFC सेल में आइए, उनको बताइए जो हमारा इस कारण से पेमेंट नहीं दे रहा है, आपका पेमेंट आएगा। इसमें एक और प्रोविज़न रखा हुआ है जो PO की टर्म एंड कंडीशन जो भी है